25তম এভিকঞ্জ এডুকেশনাল কনফারেন্স এখানে জেসি হাই স্কুল প্রাঙ্গণে যে আশা অডিটোরিয়াম আছে এখানে আয়োজিত হয়েছে। এই উপলক্ষে এখানে মঞ্চে আসি এখানে ডিস্ট্রিক্ট এডুকেশন অফিসার মহোদয়া, আমাদের অনিরুদ্ধ দা ইউএস থেকে এসেছেন, আমার বড় দাদা তাপস দা, মনোরঞ্জন বাবু, প্রসেনজিৎ বাবু, সম্মানিত অন্যান্য অতিথিগণ, পত্রকার সাথীরা, বিভিন্ন রাজ্যের থেকে এখানে আগত ছাত্রছাত্রীরা, অন্যান্য অতিথিরা, শিক্ষকবিদরা আর যারাই এখানে উপস্থিত রয়েছেন সবাইকে অশেষ অভিনন্দন, ক্রিসমাসের शुभकामना। शिक्षा सबसे मजबूत हथियार होती है इस संसार को बदलने के लिए, और इसका मुख्य कारण है कि शिक्षा ही एकमात्र माध्यम है जिसके माध्यम से, जिसके उपयोग से हम समाज की हर दूरी को बांट पाते हैं। वो चाहे राजनीतिक दूरी हो, सामाजिक दूरी हो, भौगोलिक दूरी हो, उसे बांटने में शिक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में काम आती है। आज आप देखें, शिक्षा के दम पर मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। जब मैं लंदन में रहता था, मैनचेस्टर स्टेशन पे मैं एक कोल्ड ड्रिंक खरीद रहा था, मेरे पीछे एक लड़का अपने फोन पर बात कर रहा है। अचानक मैं उसके मुंह से सुनता हूं, मैं एखन आसि पारबो नहीं, परे तुम्हें फोन करबो। Imagine the situation in the city of Manchester. At the station, I am going to buy a bottle of soft drink, and right behind my back there is someone having a conversation on the phone, speaking in a language that is not even Hindi, that is not even Bengali, that is not even a state level language. It is a local dialect from a place called Beheragoda, and that person is speaking in that language. When I turned back to see who was it, he was a boy from Beheragoda working for an IT firm there in Manchester. This is what education has done to us. Activities related to education in this remotest geography of Jharkhand and also in other states. I believe there are students here who have come from other states as well, like West Bengal, Uttar Pradesh and few more states where Lily Foundation is having their activities. The most important thing, I remember my association with Lily Foundation has been for more than 8 years now. When I came to hear about Lily Foundation for the very first time, when my friend Bapin informed me that we have this organization, and I would like to thank Sarkar Babu, who was sweet enough, generous enough to join us live from Dallas to elaborate upon why he perceived this idea of Lily Foundation, and not only Ghatshila, not only Kolkata, but several other places in India and abroad. So there are two divisions, I believe, Lily Foundation of America and Lily Foundation of India. Here we are having an offshoot of Lily Foundation India, which is called a hub in Ghatshila. I was going through their report. It is difficult to imagine that in such a short span of time, they have benefited more than 8,500 children through their scholarships, through their ALO homes, they call it, where they have coaching centers, where they have professional training centers. The essence of all this is to educate. And why it is important to educate the youth of today, why it is important to educate the underprivileged of today, why it is important to educate the girls of today. हमारे भारतीय हैं, और वो शिक्षा ही माध्यम है जिसके माध्यम से उन्होंने मुकाम हासिल किया। इसलिए शिक्षा जरूरी है कि वो आपकी इतनी बड़ी ताकत बन सकती है, सिर्फ अच्छे और बुरे का फर्क समझने में नहीं, सिर्फ जो डिजिटल डिवाइड है उसको पाटने में नहीं, बल्कि आपको मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से एक सशक्त व्यक्तित्व बनाने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है शिक्षा। मैं धन्यवाद दूंगा लिली फाउंडेशन के संस्थापक
सरकार बाबू को आज आप देखिए कितना पैशन होगा किसी का। वो चाहते तो अमेरिका में एक आराम की जिंदगी गुजार सकते थे। उनकी कोई मजबूरी नहीं है कि घाटशिला में आकर जेसी हाई स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना, घाटशिला में हब बनवाना और घाटशिला के आसपास के क्षेत्र के जो जरूरतमंद छात्र छात्राएं हैं उनको हर वर्ष 11th और 12th के लिए 12th के बाद की पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें 2000 रुपए की छात्रवृत्ति दिलवाना। कोई मजबूरी नहीं थी, लेकिन शिक्षा के प्रति जो जुड़ाव, शिक्षा के प्रति जो समर्पण, शिक्षा के पावर को समझकर उस पावर को दूसरे के हाथ में देना ताकि उस पावर के माध्यम से अन्य लोग भी वहां जा सके जहां पर वो पहुंचे, ये मानसिकता आज लिली फाउंडेशन को इस जगह पर पहुंचाई। It is important for all of us to realize that it is very important for us to give back to the society which has given all this to us. मैं जब लंदन में अपनी नौकरी छोड़कर भारत लौट रहा था तो मेरे घर के लोगों को लगता था मेरा दिमाग खराब हो गया कि क्या जरूरत है लाखों रुपए की नौकरी छोड़कर यहां पर आके गांव-गांव में भटकना। अगर हर व्यक्ति यही सोचेगा कि मुझे सिर्फ अपने लिए जीना है, सिर्फ अपने ही मुकाम को हासिल करना है, तो फिर ये परिवर्तन जो आज आप आपके सामने देख रहे हैं, ये परिवर्तन यहां पर संभव नहीं होता। उनकी क्या मजबूरी है कि वो अमेरिका से 18 घंटे 20 घंटे की फ्लाइट लेकर आज घाटशिला में आपके साथ बैठे हैं ताकि इस एडुकॉन कॉन्फ्रेंस में वो आपके सामने अपनी बातों को रख सके। कोई सोचा था कि अमेरिका में बैठा हुआ व्यक्ति आपको ऑनलाइन यहां पर भाषण देगा और सारे लोग उसको सुन पाएंगे। कोरोना के समय में हम लोगों ने देखा स्कूल्स बंद थे लेकिन शिक्षा रुकी क्या? नहीं रुकी। शुरुआत में हमें लगा कि हम कैसे ऑनलाइन माध्यम में जाएंगे, हाउ विल द ट्रांजिशन हैपन। It happened, of course, with a bit of difficulty in the initial days. Then everything gradually shifted to online platform. And now you see, there are many students I know, many youngsters I know who are still in their own city, still at their home, working for their companies. वो समय चला गया है कि शारीरिक रूप से आपका उपस्थित होना जरूरी है। अगर नहीं हो पाइएगा तो उसके लिए भी कई माध्यम है। इसलिए चीजें बहुत तेजी से बदल रही है। हम 5G की बात कर रहे हैं, हम अंतरिक्ष पर जाने की बात कर रहे हैं। ऐसे समय में हर क्षेत्र में, चाहे आप क्रिकेटर बनना चाहें, पॉलिटिशियन बनना चाहें, फिल्म स्टार बनना चाहें, बेसिक लेवल ऑफ एजुकेशन इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट। आपके जजमेंट के लिए, आपके डिसीजन मेकिंग के लिए, आप कैसे अपने आप को प्रोग्रेस करेंगे, दूसरों को मोटिवेट करेंगे, ये जुड़ाव बताता है कि कितने पैशनेटली वो कनेक्टेड है इस विषय के साथ, आप लोगों के साथ, यहाँ की परिस्थितियों के साथ, कि वो आकर यहाँ पर लिली फाउंडेशन के बारे में आपको बता रहे हैं, आने वाले समय में क्या कार्य योजना है उस पर बात कर रहे हैं, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा जरूरतमंद छात्र छात्राओं को हम प्रोफेशनल ट्रेनिंग दे पाएंगे, स्कॉलरशिप्स दे पाएंगे, मोटिवेट कर पाएंगे, इस बारे में वो बात कर रहे हैं। मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूं, शिक्षा सिर्फ शिक्षित नहीं करती है, आपको एम्पावर करती है, सशक्त करती है। सिर्फ डिग्रीज पर मत जाइए और डिग्रीज की रेस में भी मत फंसिए। आज दुख इस बात का नहीं है कि मुझे 78.5% आया है, मुझे दुख इस बात का है कि प्रसन्नजीत भाई को 78.6% क्यों आ गया। इस रेस में मत फंसिए। ये जो अंकों की लड़ाई है बहुत लंबा नहीं जाती है लाइफ में। आपको पता होगा एप्पल कंपनी के जो फाउंडर थे वो यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट थे। शिक्षा का मतलब सिर्फ बड़ी बड़ी डिग्रियां लेना नहीं है। शिक्षा का मतलब है अपने आप को मानसिक रूप से परिस्थितियों को समझकर, चुनौतियों को समझकर उसके पार जाने की जो मेंटल स्ट्रेंथ होती है उसको अचीव करना, अच्छे और बुरे में फर्क करना। क्यों कहा जाता है कि शिक्षित व्यक्ति बदलाव ला सकता है? क्योंकि उसकी जो चिंताधारा होती है, कहीं और कुछ ना तलाश कर, सब कुछ है यहाँ, कहीं और कुछ ना तलाश कर। हर आरज़ू पूरी हो तो जीने में क्या मजा, हर आरज़ू पूरी हो तो जीने में क्या मजा, जीने के लिए छोटे से एक ख्वाब की तलाश कर। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे।